Hello grade 8, welcome back in maths class. We have started a new chapter, square and square roots. So I request you first of all, you must learn all the squares and square roots from 1 to 50. Till 50 you have to learn square and square roots. Please. Okay. As we have already discussed about some topics like squares and the patterns of odd numbers, then Pythagorean triplets, yes, the most important part, Pythagorean triplet, and we have discussed about square roots also. So we have found square root of the numbers by using prime factorization method in the last class, and we have solved some one of the Pythagorean triplet question also there. So I want to recap the Pythagorean triplet and square root prime factorization method one more time. In Pythagorean triplet, we have discussed about the three numbers which satisfy the formula of Pythagoras theorem. And what is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. So when we will put all three numbers on the place of h on hypotenuse, p for perpendicular and b for base, then they will be equal. If they will be equal, left hand side equals to right hand side, then we can say that they are the Pythagorean triplets, otherwise not. Here, so we have used some other formulas also to finding out the members of Pythagorean triplet, like 2m, m square minus 1 and m square plus 1 there. Here, so you can solve or find out the members or the numbers of Pythagorean triplets by using those formulas. And square root, if we talk about square root, so we just did same thing as we have done in LCM or HCF by prime factorization method. The same thing we have to do here. We have to prime factorize the number, then we have to make the pairs. Okay, we have to pairings the numbers, like 2 is coming 2 times, so we can make the pair of 2, because it is coming 2 times, so we can take single 2 on the place of 2 times. In the same way, 7 is coming 2 times, so we can make the pair of 7 also, and we will note down 1 7 only there. Clear? So in this way, then ultimately we multiply both the numbers and find the square root of the given number. So we discussed about all these things here. Now today again I am going to solve some question based on square roots, but from different method, and the different method is the division method. Okay, so let's solve it. So get ready to learn about that. You can see on my notebook square root by division method. I have taken the question, find square root of 4356 by division method. So by division method, how can we solve it? Let's see. First of all, we have to write the whole number like this, 4356. Fine. Then हमें यहाँ पे ऐसा बनाना होगा lines. Then हमें अब यहाँ पर जैसे डिवीजन के लिए लाइन्स बनाते हैं वैसे सेम लाइन्स बनाई हमने, लेकिन यहाँ पर what we will do here, let's see. First we have to make the pairs from the right hand side corner. Like हमें 56 है, 6 और 5 का एक पेयर बनाना होगा, पीछे से पेयर करेंगे स्टार्ट. देन 5 6 पेयर बन गया, तो अब 3 4 बचा है, तो 4 3 का एक पेयर बन जाएगा, 43 का भी एक पेयर बन गया. नाउ अभी जो पेयर है, हम पेयर के हिसाब से यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक हमें 43 इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? नो, 43 इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर. यू ऑलरेडी नो कि 43 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? इससे छोटा जो होता है वो होता है 36. तो वी विल गो फॉर 36. सो 6 6 36. ओके, तो 43 माइनस 36 करा, वी आर गेटिंग 7 एज रिमाइंडर. नाउ द होल पेयर विल नोट डाउन हियर बिलो. 56 जो है हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, तो इट विल बी 756. क्लियर? नाउ अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो 6 हमने मल्टीप्लाई करा था वही 6 हम प्लस भी करेंगे पर, तो 6 + 6 इज व्हाट? 12. क्लियर? देन विल लीव द स्पेस. हम यहाँ पे एक स्पेस छोड़ेंगे एक डिजिट के लिए. क्लियर? अब ये 12 और यहाँ पे एक डिजिट स्पेस छोड़ी हमने 6. अब ये 6 जो लिखा है ये बाद में लिखूँगा मैं, पहले आपको बताऊँगा मैं कैसे लिखा 6 हमने. तो वी आर गेटिंग 756. नाउ यू हैव टू पुट 1 डिजिट हियर. With the same digit you have to multiply and get the same answer like 756. आपको एक ऐसी डिजिट यहाँ पुट करनी है 12 के साथ में, वही डिजिट से जो डिजिट आप यहाँ पुट करेंगे वही डिजिट से यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड मेक द सेम आंसर. आपको ये 756 बनाना है यहाँ पर. सो पहले मैंने 1 ट्राई करा, फिर 2 ट्राई करा, फिर 3 ट्राई करा. इन द सेम वे मैंने 5 और 6, जब 6 पे आया तो मेरा 6 पे आंसर आ रहा था 756.
तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 126 विद 6 यू विल गेट 756 एज द आंसर. तो ऊपर 6 मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई और 756 और रिमाइंडर बचा 0. यहाँ हम एडिशन कर लेंगे आगे. अब यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कुछ और नंबर या स्पेस छोड़ने के लिए भी डिजिट्स की, क्योंकि यहाँ 0 आ चुका है रिमाइंडर हमारा. फाइन. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द square root. So what will be the square root of 4356? It will be 66. You can see here 66 is there. Hence the square root of 4356 is 66. Let's see one more question. Find the square root of 0.813604. Okay. So here we have decimal number. तो first of all we have to make the pairs from right hand side. हमने पीछे से पेयर बनाना चालू करें. पीछे के दो नंबर 04 का पेयर्स, देन 36 का पेयर, देन 81 का पेयर. नाउ 0 इज रिमेन अलोन, मीन्स ये अकेला बच रहा है यहाँ पर, तो हम उसको ही छोड़ देंगे. पॉइंट जो है वो ऐसे कैसे रहेगा डेसिमल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शिफ्ट द 0 एंड डेसिमल अबाउ. हमें यहाँ पर ऊपर पहले 0 और डेसिमल शिफ्ट करने होंगे आंसर में. देन विल स्टार्ट फ्रॉम 81. हम 81 से स्टार्ट करेंगे. 81 इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? Yes, 81 is perfect square. 9 9s are, तो we have started from 9 9 9s are 81. अब जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम ऐड भी करते हैं. जैसे कि हमने ऊपर करा था 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 से ऐड करा, तो 9 + 9 कितना हो गया बच्चों? 18. देन 18 के बाद एक स्पेस छोड़ना है यहाँ पे एक डिजिट के लिए. क्लियर, हमने स्पेस छोड़ दी. 81 - 81 0 हो गया. अभी 36 नीचे उतरेगा, पूरा के पूरा पेयर उतरता है. जैसे कि हमने ऊपर भी पेयर उतारा था 56, वैसे यहाँ पर भी पेयर उतारा 36. क्लियर. नाउ 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 18 समथिंग, क्योंकि यहाँ पे एक 3 डिजिट का नंबर बनने वाला है, क्योंकि 18 इज द 2 डिजिट नंबर, बट हमें यहाँ पे स्पेस छोड़ी है जिससे कि हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा. क्लियर. तो यहाँ पे जो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म हो रहा है, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो 36 इज द स्मॉलर नंबर. तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी जस्ट मल्टीप्लाई विद 0, बिकॉज अगर मैं 1 भी यहाँ रखता हूँ, अगर मैंने 1 डिजिट यहाँ रखी तो 181 1 जा 181 होता है. तो यहाँ पे 36 है और यहाँ 181, तो इट्स नॉट पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा यहाँ पर. बिकॉज ऑफ दिस मैंने यहाँ पे 0 पुट करा है, ताकि यहाँ पे 36 से डिविजिबल हो जाए वो, या सब्ट्रैक्ट हो जाए. तो 180 इंटू 0, लुक एट हियर 0 रखा है तो 180 0 0, तो यहाँ पे 0 0 आया तो 36 एज इट इज़ नीचे उतर गया. और अब बारी आई किसकी? 04 की. तो 04 को नीचे उतारा हमने यहाँ पर 3604. अब 180 + 0 इज इक्वल्स टू 180. अगेन एक नंबर और आएगा, एक डिजिट और आएगी. यहाँ पे स्पेस छोड़ी हमने एक डिजिट के लिए. देन अब यहाँ कौन सी डिजिट आएगी बच्चों? सो वी हैव टू कंपेयर फ्रॉम 4. हमें यहाँ पे लास्ट डिजिट देखनी है. यहाँ पे 4 आ रही है, तो यू टेल मी कि 4 किसके स्क्वायर में आता है? इधर 2 और 8. क्लियर. इधर 2 और 8. हम अगर 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करें तो भी 4 आता है लास्ट में. 8 8 जा 64, 64 का 4. क्लियर. तो यहाँ पर डिसाइड कर लो कि यहाँ पे 2 आएगा कि 8 आएगा. तो मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करके देखा, 180 और 8 रख के देखा, और 8 से ही मल्टीप्लाई करके देखा तो वो नंबर बहुत बड़ा आ रहा था. सो मैंने फिर 2 रख के देखा और 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो नंबर सेम आ रहा है, 3604 आ रहा है. सो वी हैव टू पुट 2 हियर एंड मल्टीप्लाई विथ 2, तो विल गेट 3604 हियर. रिमाइंडर बचा 0, और यहाँ पे एडिशन करके हमने यहाँ पे उसको यही छोड़ेंगे 81804. हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 0.813604 इज 0.902. क्लियर. Let's see one last question also. Find the square root of 12 up to 2 decimal places. Okay, अभी यहाँ पे हमें 12 का स्क्वायर रूट निकालना है. Okay, we already know 12 is not the perfect square. अगर 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका आंसर जो आएगा वो रूट्स या पॉइंट में आएगा. तो वी कैन फाइंड आउट इन पॉइंट, बिकॉज दे आर आस्किंग इन डेसिमल. हाउ मेनी डेसिमल्स? 2 डेसिमल्स. तो हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस तक निकालना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. हमने फर्स्ट यहाँ पे लिखा 12, देन 12 के बाद यहाँ पे कुछ 12 इज़ द होल नंबर. हमें पता है डेसिमल नहीं है कहीं भी, तो हम पीछे सपोज करेंगे डेसिमल 2 के बाद. तो वी हैव सपोज्ड डेसिमल आफ्टर 2. देन आफ्टर डेसिमल वी जस्ट पुट 0 0 0 0. क्लियर. वाई 4 टाइम्स 0? बिकॉज वी हैव टू मेक द पेयर्स, और पेयर्स बनाएंगे तो 2 पेयर बनेगी, ताकि 2 डेसिमल फॉर्म हमारे पास हो सके, तो डेसिमल प्लेसेस आ सके. इसलिए हमने यहाँ पे 4 0 लिए ताकि 2 पेयर बन सके. क्लियर. Now we'll start from 12. So 12 is not the perfect square, we already know. We can start from 3 3 is a 9, क्योंकि 9 is a perfect square. Right? तो हमें perfect square ही लेना है हमेशा, ये ध्यान रखें आप. तो 3 3 is a 9 लाया अपन. 12 - 9 is what? 3. ओके. अब बारी आई डेसिमल की, तो डेसिमल को हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पहले ही डेसिमल शिफ्ट ऊपर करते था.
यहाँ पर पहले ही डेसिमल आ गया था तो हमने पहले ही शिफ्ट कर दिया था, बट यहाँ पर हमने क्या किया है 12 का जो सॉल्व करा उसके बाद डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करा, देन 0 0 नीचे उतारे हमने। अब यहाँ 3 + 3 6 हो गया। अब यहाँ एक डिजिट स्पेस छोड़ी हुई है, कौन सी डिजिट आएगी, यहाँ पे आएगा 4, तो 64 4 ज़ा 256, फाइन। तो 256 जो है वो 300 से छोटा आ रहा था इसलिए हमने वो ले लिया, अगर 5 बार में लेते तो 300 से बड़ा जाता। सब्ट्रैक्ट करा, 44 इज कमिंग, नाउ नेक्स्ट 2 0 विल बी रिटर्न हियर, देन 4400। नाउ अब यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई है क्योंकि 64 + 4 68 आ चुका था। अब यहाँ पे हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इससे छोटा नंबर आए, 4400 से जो भी आए। तो 6 बार में करा तो हमारा आंसर आ रहा है 4116। देन वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स, वी विल गेट 284 एज द रिमाइंडर। नाउ वी डोंट हैव सो मेनी zeros, extra zeros here, we don't have, so what we can do here, we just left the question here and we can write hence the square root of 12 correct up to 2 decimal places is 3.46. 3.46 is the square root of 12 up to 2 decimal places. Is it clear? Okay, so in this way we can find out the square root of the number in decimal form also. Clear? It's not necessary कि आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ही आंसर मिले, जैसे कि 66 यहाँ परफेक्ट नंबर था, 4356 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, बट ये जो डेसिमल नंबर्स थे 0.813604 और जो हमने पीछे सॉल्व किया है 12, ये दे आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट देन इवन वी कैन फाइंड आउट देयर रूट्स लाइक दिस बाय यूजिंग डिविजन मेथड. Please practice this method again and again so that it will be easy for you solving the questions. Clear? Thank you for attending today's class.